Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Today is Tuesday, 1st of December, the last month of this year. And we are going to study about the new chapter of final term. Before that, I'm going to discuss the syllabi. Oxford International School GH Campus, International Primary Science 5. We have syllabus outline. In syllabus outline, we have two terms, first term and final term. In first term, हमारे पास 3 chapters थे. Chapter number 1, keeping healthy. Chapter number 2, gases all around. Chapter number 3, changing states of matter. All have done, all have completed. Syllabi of first term has been completed and checked by the teacher. Now we are coming on final term syllabus, and again final term syllabus we have 3 chapters. Chapter number 4, discovering plants. Chapter number 5, sounds all around, and chapter number 6, electricity. Today we are going to study about chapter number 4, discovering plants. In discovering plants, we have the topic production of flowering plants. Production, reproduction. Reproduction, production is the same meaning. Reproduce करना, अपने जैसी चीज को reproduce करना, पैदा करना. It's very necessary or essential for all living things. When we talk about living things, it means they are able to reproduce by themselves to continue their species. अपनी क्या कहते हैं, एक पूरी की पूरी चेन को चलाने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं. In below photograph, you can see the plants seedlings. आप नीचे दिए गए फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि एक छोटे से बीज से, सीड से एक छोटा सा पौधा बढ़ बढ़कर एक बड़ा सारा दरख्त बन जाता है और उस फिर अपने जैसे और दरख्त उसके बन जाते हैं. कैसे बनते हैं, ये रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, why reproduction is important, how is it possible, how many ways to reproduce by themselves. In this chapter, we are going to study about it, and it's really very interesting. I always like to teach reproduction. Reproduction is very vast, बहुत vast और मजे का topic. Embryo कहते हैं उस छोटे से बीज को, उस सीड को जिससे एक बड़ा सारा प्लांट बनता है. The ability to reproduce is one of the characteristics of living things. I repeat my words again. When we talk about living things, means we are talking about all the species in the world which are able to reproduce by themselves in a 2 ways, sexual way or asexual way. ठीक है? Just imagine, see the picture on the slide. What would happen if rice plant were not able to reproduce? Just imagine करें कि चावल जो है, राइस जो है, उसके प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते. चावल दुनिया में बनना, पैदा होना खत्म हो जाता है. How do you feel? I feel very bad because I love rice. Without rice, the life is quite difficult. मतलब कि आप हर टाइम से प्रोटीन नहीं खा सकते ना. तो किसी भी प्लांट की, एनिमल की, लिविंग थिंग के रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? कहीं ना कहीं से चेन हम पर आती है. Because we also the part of कि हम भी किसका पार्ट है? Living things का. We are living things. There would come a time when there would be no rice plant left. जरा सोचिए उस बारे में कि कोई भी राइस का प्लांट नहीं रहता. Living thing reproduce to ensure that their own kind will continue to exist. Living things reproduce इसलिए करते हैं, essential इसलिए होता है. It is essential, important for living things
कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं या हम ये चीज अपने आगे वाले लोगों के लिए और पीछे जो हम हमारे चले गए हैं ये छोड़ते हैं कि हम अकेले नहीं, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस। और ये पूरी की पूरी चेन और दुनिया इसी तरह से चलती है। आपके मदर फादर हैं, उनके मदर फादर हैं, उनके दादा परदादा होते हैं, उनके दादा परदादा होते हैं, ये सब कुछ होता है ना। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज एसेंशियल, अदरवाइज दे वुड बिकम डाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो डाई हो जाए। दुनिया में एक ऐसी स्पीशीज भी थी, डायनासोर का आपने सुना होगा कि डायनासोर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, रीजंस या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो एक ऐसी स्पीशीज थी जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करती। Why is there a need of living things to reproduce? Living things को reproduce करने की जरूरत क्यों होती है? Why? We are, I repeat my words again, we are also the part of living things because we are able to reproduce. जो भी दुनिया में स्पीशीज लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लोग लिविंग थिंग है, इधर द पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, यू एंड मी, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। लेकिन ये क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? Why is there a need of living things to reproduce? A living organisms, organisms की जब बात आती है, जो छोटे से छोटा जरा जो है लिविंग थिंग है वो भी इंक्लूड हो रहा है। Does not need reproduction to survive, इसलिए नहीं कि उन्हें जिंदा रहना है, but as a species, एक नस्ल चलाने के लिए they need that for continuity and to ensure that they are not family. वो ये जाहिर नहीं करना चाहते, मतलब कि हमें ये कैपेबिलिटी कि हम ये कहें कि हमारी फैमिली, to ensure their family, they reproduce. There are two main types of reproduction. Reproduction, अब हमें समझ आ गया कि reproduction क्यों कर। अब reproduction की two main kinds हैं, sexual reproduction and asexual reproduction. You can see in the picture एक bird है, साथ उसका egg है और chick है, छोटा सा chick है, adult है, सबसे पहले start to egg. 3 weeks के बाद you can see the chick, then about 3 months you can see the adult. Again you can see the picture and egg से hatch होके baby जो है, chick जो है वो बाहर आया है, और you can see the duck also. Reproduction in living things, ये सब के सब picture में living thing है और इन सब की reproduction। मैंने अभी आपको बताया था reproduction के 2 ways हैं, sexual way and asexual। सबसे पहले sexual reproduction। In sexual reproduction involves the production of male and female gametes। Sorry, इसमें involves होते हैं male and female gametes। The transfer of the male gametes to the female ovules in a process called pollination। क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? मेल गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू फीमेल ओवल्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स अ मेल फ्लावर एंड इट्स अ फीमेल। Male gametes transfer with birds, with animals, with wind to female flower। फीमेल के ओवल तक पहुंचते हैं इसके गैमेट्स मेल के, और वहां पॉलिनेशन होता है एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन। The ovary which produce the female gametes then grow into a fruit, then you can see the form of fruit which surrounded the seed, जो कि सीड से भी ग्रो करता है बाद में और फ्लावर के थ्रू। ये कौन सी रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड मेल एंड फीमेल। Either we are talking about animals, we are talking about plants, and we are talking about other species. But when we talk about sexual reproduction, we need male and female, both partners. Is that clear?
Okay, now see the next slide. Asexual reproduction. For the asexual reproduction, process plants that are genetically identical to the parent plant because to mixing of male and female gametes take place. Vegetative reproduction results in a new plant individual without a new production of seeds or spores. Many different types of fruits. अच्छा जी, asexual reproduction में आप देखिए कि आप एक सिंपल एग्जांपल ऐसे समझिए कि आप रोज प्लांट को लीजिए। रोज प्लांट की एक जो ब्रांच है उसे कट करके दूसरी जगह दूसरी जमीन में लगा दीजिए, वो वहां प्रोड्यूस कर जाएगा, वहां उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो मींस इस रिप्रोडक्शन में नो नीड ऑफ मेल या नो नीड ऑफ फीमेल, वो खुद से रिप्रोड्यूस करते। इसकी मैं आपको और एग्जांपल्स भी देती हूँ। इसकी एग्जांपल्स में आपने मनी प्लांट देखा, एक बेल है, उसमें ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। उन लीव्स के सिर्फ एक लीव को भी आप कट करके दूसरी जगह पर या अपने घर में बॉटल में लगा देंगे, दैट स्टार्ट ग्रोइंग, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। मींस उस रिप्रोडक्शन के लिए नो नीड ऑफ सेक्सुअल। अब देखिए मेल एंड फीमेल पार्ट्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपके पास मेल एंड फीमेल पार्ट्स आ जाते हैं। यू शुड नो अबाउट द मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द स्टैमेन। मेल पार्ट्स को क्या कहते हैं? यू कैन कॉल द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमेन, are made up of anther at the top and the stalk of the filament that support the anther. अब मैं बताती हूँ anther क्या है। ये देखिए, ये स्टेम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेल पार्ट्स को कहते क्या है। यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इट्स अ स्टेमन। सी द सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन। 4 मेन पार्ट्स प्लांट के हैं, ठीक है। सेपल जो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की लीव्स होती है ना, जो पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। राइट नाउ आई डोंट हैव ओरिजिनल फ्लावर, अदरवाइज आई विल शो। मैं आपको शो करती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की 5 लीव्स होती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। इन लीव्स को क्या कहते हैं? सेपल। और जो कलरफुल रेड, ब्लू या ग्रीन कलर की या पिंक कलर की लीव्स होती हैं, उन्हें कहते हैं पेटल्स। उन्हें क्या कहते हैं? पेटल। जो पत्ते होते हैं ना फूल के, उन्हें क्या कहेंगे? पेटल। एंड यू कैन सी इनसाइड एक ट्यूब टाइप चीज पतली सी आपको दिखती है, दैट इज कॉल्ड कार्पल। एंड ये जो येलो कलर की जो थोड़ी सी टर्न की होती हैं यूं करके, कॉल्ड स्टैमन। ये स्टैमन क्या है? ये मेल पार्ट है। स्टैमन इज मेल पार्ट। The female elements are collectively called the pistil. Female parts को क्या कहते हैं? Pistil. You can see in this picture, the blue color show male parts and the pink color show female parts. Female parts में आपके पास है stigma, style, carpal, ये female parts हैं, ovary, ovule. Stigma, which is sticky surface respective to pollen. अब pollination होती कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, समझाऊंगी। अभी आप मेल और फीमेल पार्ट्स को देख लीजिए। मेल पार्ट्स कौन से हैं? इन ब्लू कलर, स्टेमन, मेल पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। इसमें और कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है? स्टेमना, स्टेमन। ब्लू पिंक कलर के जो पार्ट्स हैं, कार्पल, इट्स फीमेल पार्ट्स। स्टिग्मा मोस्टली से पेस्टल कहा जाता है। अब पॉलिनेशन हो कैसे रही? In the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma, anther मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर से फ्लावर तक, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं फ्लावर के कुछ
बारीक बारीक से, जो आपने अक्सर देखा होगा जब हवाएं चल रही होती हैं, यू फील कफिंग और स्नीजिंग, आपको एक खास सीजन में बहुत ज्यादा इस किस्म की चीज फील हो रही होती है। तो ये जो एंथर होते हैं, ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, ये बहुत पीक पर होता है। यू कैन सी इन अ फ्लावर, आप फ्लावर के अंदर, फ्लावर में आराम से देख सकते हैं। ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन मैं घर से बाहर नहीं जा रही, वरना मैं आपके लिए जरूर ओरिजिनल फ्लावर अरेंज करके आपको दिखाती, बट आई विल शो, डोंट वरी। Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक बारीक से जर्रे होते हैं पोलन, वो मेल के फ्लावर से बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स और बाय एनिमल्स फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन पहुंचते हैं, छोटे छोटे से। वो पोलन अक्सर आपकी नाक या मुंह पे कहीं फील हो आपको, हाथ पे, तो यू फील इचिंग, हमें इचिंग होती है। समटाइम आपने देखा होगा स्कूल में जब हम स्टेयर्स पे चढ़ रहे होते हैं तो कोई भंवर सी टाइप की चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होती है फ्यू स्पेसिफिक डेज, तो दैट वाज पोलन, वो पोलन होते हैं, छोटे 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 से जरे लीफ टाइप के होते हैं। The goal of every living organism includes plants is to create offspring for the next generation. और इस तरह से उन pollens को sometimes safe भी कर लिया जाता है for next generation, कि उनकी generation start की जाए और खुद से pollination start कर दी जाए। One of the way that plant can produce offspring is by making seed, जो कि एक फॉर्म है सीड्स की। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं उसे, मैंगो का सीजन नहीं है, बट मैंगो के सीड्स जो हैं वो फार्मर्स बहुत ड्राई करके सुखा के रख लेते हैं। इसी तरह से लेडी फिंगर, भिंडी होती है, बहुत सारे वेजिटेबल्स और चीजें हैं जिनके सीड्स को संभाल के रखा जाता है फॉर कल्टीवेशन के लिए, और वो ऑफ सीजन में, जब उनका सीजन नहीं होता, फिर भी उन्हें ग्रो किया जाता है। दिस इज सिंपल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो वेज हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। For sexual reproduction, we need male and female, and for the asexual reproduction, no need of male or female. They can grow by their own self. एक शाख से, एक लीफ से, एक स्टेम से, एक रूट से, हर प्रोसेस से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको पॉलिनेशन बताया है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए हैं, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ये भी पॉलिनेशन के हैं, पेटल देख लीजिए, एंथर, anther is a male part, stamen, filament, sepal, petal, style, ovary, these are female parts. अब पॉलिनेशन तो समझ आ गया कि पॉलिनेशन क्या है। अब पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक वो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। कैन आई टेक अ सिप ऑफ वाटर? Thank you. Self-pollination occurs when the pollen from the anther of one flower is transferred to the stigma of the same flower or to the stigma of another flower or on the same plant. एक ही प्लांट पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। अब वो उसी प्लांट में से अपने ही मेल के पास स्टिग्मा जाते हैं, तो ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन। उसे किसी दूसरे फ्लावर के पास भी चला जा सकते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास भी जा सकते हैं, अपने ही घर का जो खुद का प्लांट है वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन, फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, ये देखिए, ये एक प्लांट है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स हैं। अब यहां से मेल फ्लावर के जो पॉलन है स्टिग्मा तक ट्रांसफर होकर चले गए ये फीमेल के पास, और यहाँ रूट बन गया, एक नया फ्लावर बन गया। ठीक है, अब ये हुई सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां से
पॉलन जो है वो दूसरे प्लांट तक जाएंगे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएंगे। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। यहाँ एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स ने मिलकर जो काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ से एंथर जो है, पॉलन जो है, दूसरे फ्लावर के अंशरा के फ्लावर पर चले गए, अंशरा के प्लांट पे चले गए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। चीजों को सिंपल अंडरस्टैंड करें, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन की पिक्चर देखिए। प्लांट फर्टिलाइज इट्स ओन एग्स, ये चीज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, इट्स वेरी सिंपल। सेल्फ पॉलिनेशन की एक और पिक्चर है, एंथर है, पॉलन है, स्टिग्मा है। ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन है और ये एंथर है। यहां से उठ के ये पॉलन एंथर से स्टिग्मा पर चले गए, फ्रूट। अब यहां से ये पॉलन एंथर से उठ के दूसरे फ्लावर के पे भी जा सकते हैं, ट्री के प्लांट पे भी जा सकते हैं, तो वहां क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। ये है सेल्फ पॉलिनेशन। इजी है ना? शो मी बाय योर हैंड्स। यस, गुड। अब क्रॉस पॉलिनेशन देखिए। Occurs when the pollen from the anther of one flower is transferred to the stigma of flower from another plant. I already explained. सवेरा के प्लांट्स ने अपनी सेल्फ पॉलिनेशन की, मेल और फीमेल। यहां पर एंथर ने पॉलन उठे और कहां गए? स्टिग्मा तक, एक ही फ्लावर में। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। अब यहां से एंथर के पास जो पॉलन थे वो अंशरा के ट्री के फ्लावर के पास चले गए, ये हो गई क्रॉस पॉलिनेशन। Flowers may be pollinated by wind or by animals such as insects, birds, and bats. Already told you about that. Wind से flow करते हैं, wind से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं pollen, by animals जाते हैं, insects जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब birds बैठे होते हैं, किसी फ्रूट को, फल को खा रहे होते हैं, तो वो बीच बीच में से गिरा रहे होते हैं, फिर उनके सम टाइम उनकी बीक में भी कुछ लग जाता है पॉलन्स, और उनके फीदर्स में भी लग जाता है, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह से भी पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, ये यहां से पॉलन्स जा रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर्स तक, ठीक है, या दूसरे फ्लावर तक, ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन। See another picture of cross pollination. See, difference between self pollination and cross pollination already explained. मैंने पहले ही बहुत briefly explain कर दिया है difference दोनों में क्या है। सवेरा समझ आ गया ना हुज़ैफा आपको? गुड। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ मैंने हाईलाइट पॉइंट्स किए हैं। आई विल शेयर विद यू फॉर द होमवर्क, कि मैं आप लोगों के साथ होमवर्क में शेयर करूंगी और आप लोग इसे करेंगे। सी द नेक्स्ट स्लाइड, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीजें जो भी आई विल शेयर विद यू फॉर द होमवर्क, यू विल कॉपी इन योर नोटबुक। आप ये बिल्कुल इस तरह से अपनी नोटबुक में बनाएंगे जैसा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। बिकॉज ऑन फ्राइडे वी विल मीट इन स्कूल, हम स्कूल में मिलेंगे, एंड आई विल चेक योर कॉपीज, राइट? इट्स एंड। अब हम बैक पे जाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन होती क्या है, व्हाई इट्स essential for everyone to maintain, to ensure their family, their species. इसमें sexual reproduction होती है, asexual reproduction होती है, male and female parts होते हैं, pollination होती है, pollination के बाद self pollination and cross pollination. And what is the difference between self and
Cross pollination. Okay, now come on screen. अब सब बच्चे आ जाइए. Stop share. G. Any difficulty? Any question? No. Savera, you want to ask anything? No, teacher. Zafa? No, miss. Things are clear? Things are clear? Yes, clear hai? teacher. Yes. Okay, then goodbye, because I have my next unit. Mera next unit hai. I'm going to teach in other class. After that, I will share the homework with you. Okay? Take care. Take care. Allah Hafiz. Bye. Bye bye. Bye.